Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you're audible. Good evening. Thank you. Today we will read the last chapter of this beautiful book. Before that, let us do a short meditation. Sit back comfortably. Take a deep breath in, deep breath out. Close your eyes and listen carefully. Let me look at myself. Each thought is a seed. From this seed emerges the tree of my body, relationships, work, and each role that I play. And also the seed, each thought and feeling, these figures are is my creation. I am the creator of my thoughts, words, and actions. For a healthy tree, I make the seed healthy. I each thought is pure, clean, beautiful, loveful, powerful, in control, rising above the impact on the situation. She was saying this that only one to see creates my healthy body and relationships. From today, I make effort not towards the tree, but I pay attention to the seed. I pay attention to my thoughts. I create beautiful, loveful, and empowering thoughts. Om Shanti. Is the screen visible to everyone? Yes, it's visible. Today. So, this is the last chapter of this book. Today's topic is life and spirituality go hand in hand. Suresh Oberoi. I was thinking whether someone like a businessman who has to deal with all sorts of people may not be able to follow the path of spirituality. सुरेश ओबेरॉय जी पूछ रहे हैं कि वो ऐसा सोच रहे थे कि जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है जिनको सारे के सारे तरह के लोगों से डील करना पड़े, सबके साथ इंटरेक्ट करना पड़े, हो सकता है कि वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो ना कर पाए। Today, every field of work, be it business, administration, education, or healthcare, has challenges. There are all kinds of people everywhere, and a lot of things are happening that we may never have heard of. But if we start to think about them, our mind will wander in that direction. सिस्टर शिवानी कह रही है कि हर एक फील्ड में, चाहे बिजनेस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, सब में चैलेंजेस होते हैं। हर जगह हर तरह के लोग मिलते हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसके बारे में हमने कभी सुना सोचा नहीं होता है। अगर हम उन चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं
तो हमारे माइंड में वही सब चीजें घूमने लग जाती हैं. The weather could turn bad. There could be an outbreak of infection, or the water could be contaminated. But none of these is an excuse to allow ourselves to fall ill. If we believe it is natural to fall ill because of the weather outside, we will lead a life of suffering. This is what we are doing today. वेदर खराब हो सकता है, इन्फेक्शन का आउटब्रेक हो सकता है, वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. पर इन चीजों के वजह से हमें खुद को एक्सक्यूज नहीं देना है. हम खुद को अलाउ नहीं कर सकते हैं कि हम बीमार पड़ जाएं. अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ये सारी चीजें हैं तब तो नेचुरल है बीमार होना, वेदर ऐसा है, तब क्या होगा? हमारी लाइफ सफरिंग से भर जाएगी. और यही हम आजकल करते हैं. Take a simple example. Many of us use anger in our day-to-day life. We picked up this habit from our environment. When we saw that anger got people quick results, that life saved them from difficulties, and that corruption accelerated their work progress, we started using these methods in our life. This is because our only aim was to get our work done. In the last 20 to 30 years, we have achieved a lot in life. However, the outer fact is that we souls have become weak because of the way we have gone about achieving things. इन्होंने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है. बहुत सारे लोग एंगर को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और ये हैबिट उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट से लिया है. एनवायरनमेंट से कैसे लिया है? ऐसे लोगों को देखा कि जो लोग एंगर, अगर गुस्सा होते हैं तो उन्हें जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं. झूठ बोलने से वो परेशानियों से बच जाते हैं. करप्शन करके वो जल्दी प्रोग्रेस हासिल कर देते हैं. तो ये सारी चीजें देख करके ये अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल करना होगा. क्योंकि इनका ओनली एम क्या था? सिर्फ एक एम क्या था कि अपना काम करना. अब वो किस तरह से हो रहा है, कोई खराब तरीके से नेगेटिव संस्कार यूज करके हो रहा है तो ठीक है, लेकिन बस अपना काम करना है. उस वजह से वो लोग वो सब चीजें यूज करने लग गए थे. लास्ट 20 to 30 years में लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में. पर एक दूसरा फैक्ट क्या है कि जो सोर्स है वो वीक हो गई, कमजोर हो गई, क्योंकि हम किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, किस तरह से हम वो चीजें अचीव कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करती है. अपना काम हमें करना है, सक्सेस भी अचीव करनी है, सब कुछ करना है, पर उसमें हमारी जर्नी कैसी रहती है ना, वो बहुत मैटर करता है. हमें अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान रखना है rather देन एंड रिजल्ट. और वो जर्नी ब्यूटीफुल कब होगी? जब हम ब्यूटीफुल संस्कार को यूज करेंगे, इमर्ज करेंगे, तब वो जर्नी हमारी अच्छी होगी. और जब जर्नी अच्छी होगी तो रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा. Suresh Oberoi, people use different tactics to get their work done. Some threaten others or frame them. Even a child has his way of trying. Those of us who have allowed ourselves to become part of such a system have to sit back and check the quality of our life and the state of the soul. If by using these means we aren't happy inside, love is still our value and healthy is natural to us, we need not change anything in ourselves. सुरेश जी कह रहे हैं कि लोग आजकल बहुत सारे टैक्टिक्स यूज करते हैं अपने काम निकलवाने के. कोई डराता है, कोई डिफेम करने की कोशिश करता है. तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी आजकल क्या करते हैं? रोने को यूज कर लेते हैं, अपने क्राइम वाले को यूज कर लेते हैं अपना काम करवाने के लिए. तो ये सारी जो चीजें हो रही है उसके लिए सिस्टर शिवानी कह रही है, जो भी इन चीजों को यूज करता है ना, उसको पहले अपने आप को चेक करने की जरूरत है. अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने की जरूरत है, अपनी सोल की स्टेट देखने की जरूरत है. हमें अपने आप से क्या क्या पूछना है? क्या हम इनसाइड हैप्पी हैं? अंदर से क्या हम सच में खुश हैं? क्या हमारी वैल्यू लव है? क्या हेल्थ हमारे लिए नेचुरल है? अगर ये तीनों चीजें हों, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड लव, ये अगर हमारे अंदर में है तो फिर हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं. बट ऑल दीज टैक्टिक्स डू वर्क एज वेपन्स फॉर पीपल. सुरेश जी कह रहे हैं पर ये जो टैक्टिक्स यूज करते हैं वो लोग, वो तो उनके लिए वेपन की तरह काम करते हैं. सिस्टर शिवानी, सपोज आई फ्लॉन्ट अ वेपन, पीपल गेट स्कैर्ड ऑफ इट.
and so that weapon makes it easier to get my work done. I may have been successfully using this weapon for a long time, but today I need to check if holding this weapon has injured my hand. I may have accomplished a lot, but my method of working could have wounded me. The healing process will take time and it will not begin till I let go of the weapon. सिस्टर शिवानी कह रही है कि सपोज मैंने एक वेपन निकाला, लोग उस वेपन को देख करके डर गए और उस वेपन की वजह से मेरे लिए अपना काम करना बहुत इजी हो गया। तो यहाँ पे तो सक्सेसफुली मैंने यूज कर लिया वेपन को और मैं हो सकता है इस वेपन को बहुत लंबे समय से यूज करते आ रही हूँ। पर अभी क्या करना है, अभी चेक करना है कि इस वेपन को होल्ड करते करते क्या मेरे हाथ में चोट लग गई है। मैंने बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया होगा इस मेथड को यूज करके, इस वेपन वाले मेथड को यूज करके, पर उसकी वजह से जो मुझे घाव लगे उसके लिए हीलिंग प्रोसेस की जरूरत है। हीलिंग में टाइम लगेगा और हीलिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक इस वेपन को लेट गो नहीं किया जाए। तो यहाँ पे लेट गो ऑफ द वेपन से हम लोग क्या समझ रहे हैं, लेट गो ऑफ एनी ऑफ द टैक्टिक्स मेंशन्ड अबव लाइक एंगर। We haven't done anything properly. If someone is achieving his purpose by using a weapon, why would he consider giving it up? सुरेश जी कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपना काम कर लिया, अपना पर्पस अचीव कर लिया इस वेपन को यूज करके, तो फिर वो गिव अप क्यों करेगा? बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द वेपन अगेंस्ट अदर्स हिज ओन हैंड may get cut and he may never get a replacement. सिस्टर शिवानी कह रही है कि इस वेपन को यूज करते करते उसको खुद का हाथ कट गया होगा और इसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हाथ कटना ये जो है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, जो हमारी सोल पावर वीक हो गई और उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकता। हमारी सोल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना, हमें अपनी सोल पावर के ऊपर ध्यान रखना है, हमारी सोल का स्टेट क्या है। तो उसके लिए जो वेपन्स होते हैं ना, एंगर, क्रिटिसिज्म, थ्रेटनिंग, ये सारे वेपन्स छोड़ करके अपनी सोल के स्टेट को अच्छा करना है, एम्पावर करना है। Could you explain that point? It means that our ways of getting work done, be it the habit of using anger, criticism, manipulation, or control, could injure us so badly that we may never fully recover from it. Repeated use of negative emotions deplete soul power. They weaken our mind, which in turn influence our body and relationships. If our spiritual health is weak, there's a high chance that our emotional, mental, physical, and social health will get affected. This will create a life of pain. So we all have to choose our priority. तो इसको सिस्टर शिवानी ने एक्सप्लेन किया है कि बहुत सारे टैक्टिक्स जो वेज यूज करते हैं ना अपना काम करवाने के लिए, जैसे हैबिट होती है एंगर, क्रिटिसिज्म, मैनिपुलेशन, कंट्रोल करने की, ये सब यूज करने से क्या होगा, खुद को इंजरी होगी और इतनी ज्यादा बुरी तरह से होगी कि हम उससे कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इन नेगेटिव इमोशंस को रिपीटेडली यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी सोल पावर डिप्लीट होती है। सोल पावर डिप्लीट होगी, हमारा माइंड वीक हो जाएगा और उसके वजह से क्या होगा, जो थॉट है सोल से निकलती है, जो वो थॉट तो सीड है ना, और इससे ट्री में क्या होता है, हमारा बॉडी, रिलेशनशिप, वर्क और जो भी हम रोल्स प्ले करते हैं वो सब कुछ वो ट्री सिंबलाइज करता है। तो अगर सोल ही डिप्लीट हो जाएगी तो जो क्वालिटी ऑफ सीड है वो जब खराब होगी तो ट्री कैसा बनेगा, वो सब भी तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अगर वीक होगी तो हाई चांस क्या होगा कि हमारी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल हेल्थ भी अफेक्ट हो जाएगी और इसकी वजह से लाइफ में पेन क्रिएट होगा। इसलिए हमें अपनी प्रायोरिटी को चूज करना होगा। People use these tactics so that they can achieve more in life for the sake of their family, so that they can earn respect in society and experience love and happiness. But by adopting a by hook or by crook approach, they land in the opposite direction. They end up doing irreversible damage to their mind, health, and relationships. They now need to pause and ask themselves if it was all worth it. ये जो tactics use करते हैं ना ज्यादा अचीव करने के लिए लाइफ में,
और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली को, मतलब उसके बारे में भी हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि जो ट्री है ना, हेल्थ, रिलेशनशिप, बॉडी, ये सब के बारे में हम लोग नहीं सोचते हुए क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ सोचते हैं मुझे थोड़ा सा छोटा सा काम है ना, उसको हम लोगों को किसी तरह से करवा लेना है। उसकी वजह से हम ये टैक्टिक्स में नेगेटिव इमोशंस यूज कर लेते हैं। और क्या करते हैं हम, सोसाइटी में हमें रिस्पेक्ट मिले अगर हम इतना अचीव करेंगे, और हमें लव और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होगी। और ये जो अडॉप्ट करते हैं बाई हुक और बाई क्रुक अप्रोच, इस वजह से क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लैंड कर देते हैं हम लोग। और फिर क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाती है हमारे माइंड, हेल्थ और रिलेशनशिप में, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ सीड है वही खराब हो गई, तो ट्री भी तो खराब ही होगी। अभी हमें पॉज करना है और खुद को पूछना है, क्या ये सब हमें करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है? If we live in mansion but cannot stay together as a family, then what's the goal? अगर हम किसी बड़े मैंशन में भी रह रहे हैं पर साथ में एक फैमिली की तरह नहीं रह रहे, तो फिर उसका मतलब ही क्या होगा? I know of a millionaire whose children stay abroad. He keeps requesting them to come back, but they refuse to live with him or use his money. सुरेश जी कह रहे हैं कि एक मिलियनर को जानते हैं जिनके चिल्ड्रन अब्रॉड रहते हैं, और वो बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं अपने बच्चों को वापस आने के लिए, पर वो लोग उनके साथ में रहने के लिए मना कर देते हैं और उनके ही पैसे यूज भी करते हैं। That person needs to check the means he had used to earn wealth and what sort of energy he had earned along with the money. तो सिस्टर शिवानी कह रही है वो जो मिलियनर है ना, उनको चेक करना चाहिए कि उन्होंने जो वेल्थ अर्न करने के लिए जो मीन्स यूज किए, वो कौन से मीन्स यूज किए, कौन सी एनर्जी के साथ में उन्होंने अर्न किया है इतना। जैसे एक नहीं दिया था स्टोरी उसमें कि एक सेंट भी वो जो एनवायरनमेंट है और जिस मीन से कुछ पैसा मतलब अर्न किया था किसी बिजनेसमैन ने, तो वो सेंट भी चोरी करने के लिए मतलब अफेक्ट हो गया था, क्योंकि उस पैसों में जो वाइब्रेशंस थी तो वो अफेक्ट करती है। और फिर जब वो सेंट अपने घर गया तो उसे एनवायरनमेंट में एक चेंज मिला और फिर उसको अपनी गलती समझ में आई थी। तो ये हमारी जो वाइब्रेशंस होती है, जो एनर्जी होती है, ये बहुत मैटर करती है, इसीलिए हमारी जर्नी ज्यादा मैटर करती है कुछ भी हम करते हैं। If he used the sanskar of anger at work, he would probably have lost his cool, even with his kids. अगर उन्होंने अर्न करते करते एंगर को यूज किया तो फिर वो अपने बच्चों के साथ में भी उतना अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे। दैट वुड हैव क्रिएटेड अ गैप इन द फैमिली ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में क्या होगा, बच्चों के बीच में और उनके बीच में फिर गैप आ जाएगा। नाउ व्हेन द चिल्ड्रन आर ऑल ग्रोन अप दे डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद हिम। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, दे डू नॉट वांट टू कम बैक बिकॉज दे डिड नॉट लाइक द हेवी एनर्जी इन द हाउस। इसीलिए वो वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि घर में हेवी एनर्जी है। वी रियली नीड टू आस्क आवरसेल्व्स इफ वी वांट टू गेट आवर वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स, what will we do with all the money earned if our health is so bad that we can no longer enjoy a good meal or get a good night's sleep? तो हमें अपने आप से पूछना है कि जो हमें अपना काम करना है वो हम किसके कॉस्ट पे कर रहे हैं। अगर हमने मनी अर्न भी कर ली, बहुत ज्यादा मनी अर्न कर ली, पर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है क्योंकि हमने अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं किया था मनी अर्न करने के टाइम पे, या फिर इमोशनल मेंटल वेलबींग पे ध्यान नहीं दिया था, हम एक गुड मील को एंजॉय नहीं कर सकते, एक गुड नाइट स्लीप को नहीं एंजॉय कर सकते, तो उस मनी का क्या मतलब है? Today we can hardly find a family where everyone is happy and enjoys good health and relationships. That is why the sage is called Kalyug or Iron Age, a time when chaos, despair, and unrest are dominant. We are not sad because of the times we are living in, but it is the other way around. We are in Kalyug because we are sad. सिस्टर शिवानी कह रही है कि आजकल ऐसी फैमिली खोजना बहुत ही मुश्किल होता है जिसमें सभी लोग खुश हैं, सबकी गुड हेल्थ और रिलेशनशिप्स हैं। इसी वजह से ना इस टाइम को बोला जाता है कलयुग या आयरन एज, क्योंकि यहाँ पे केवल डिस्पेयर, अनरेस्ट, ये सब डोमिनेंट इमोशंस है। और हम इसलिए सैड नहीं है क्योंकि हम कलयुग में हैं, पर हम इसलिए कलयुग में हैं क्योंकि हम सैड है। If we want to alter our situation, we have to let go of our old belief systems. Even if everyone around is still using the old beliefs, we must make our personal choices based on what we want from life. If a happy mind, good health, and beautiful relationships
are our priority. We have to take care of all of them consistently. हम इस सिचुएशन को ऑल्टर कर सकते हैं। जब हम कलयुग में रहते हैं ना, तो हम अपना सतयुग खुद बना सकते हैं। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें लेट गो करना होगा अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को। अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को जब हम लेट गो करेंगे, तो हम इस एज से दूसरी एज में चले जाएंगे। अगर हमारे आसपास में सब लोग ओल्ड बिलीव्स भले यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पर्सनल चॉइसेस होगी वो किस बेसिस पे होनी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए। एक हैप्पी माइंड, एक गुड हेल्थ और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, अगर ये हमारी प्रायोरिटी है, तो हमें इन सब का ध्यान कंसिस्टेंटली लगातार रखना ही होगा। By making a positive inner change, we will also earn a good night's rest. These days, some people cannot sleep even after popping a sleeping pill. अगर हमें पॉजिटिव इनर चेंज हम कर लेंगे ना, तो हमें एक गुड नाइट रेस्ट भी मिल जाएगा, सुरेश जी कह रहे। और आजकल लोग नींद की गोलियां खा के भी नहीं सो पाते। सिस्टर शिवानी, यस, वेरी ट्रू। वी हैड बीन सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड एंड वी हैव मैनेज्ड टू अचीव अ लॉट आउटसाइड। In the past few decades, science has given us so many facilities and mediums of communication that we should actually have been leading very comfortable lives by now. But the fact is, we are far more stressed today. सिस्टर शिवानी कह रही है कि हम हैप्पीनेस को बाहर खोजते हैं, और बाहर बहुत कुछ हमने मैनेज भी कर लिया अचीव करने के लिए। लेकिन अगर हम कुछ पास्ट फ्यू डेकेड्स में देखेंगे, तो साइंस ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दिया है। उसकी वजह से हमारी लाइफ और भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। पर फैक्ट क्या है कि आज लोग और भी ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। कंफर्ट्स वर सो फ्यू, देयर वेर नो सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट इधर। तो पहले के टाइम पे कंफर्ट्स भी नहीं थे, इतने सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट भी नहीं थे। वी यूज्ड टू लिसन टू द रेडियो और वॉच द ओनली टीवी चैनल अवेलेबल एट दैट टाइम। सुरेश जी कह रहे हैं कि रेडियो सुनते थे और जो ओनली टीवी चैनल अवेलेबल होता था वही देखते थे। आवर किचन टुडे इज fitted with so many gadgets that we can wrap up cooking in no time, and that too just at the push of a button. Our grandparents had none of these luxuries, which have become our necessity today. But probably their generation was much happier than ours. Not many medical treatments were available to them, but they were far healthier than us. There are many grandparents and great grandparents even today leading healthy lives. मिस्टर शिवानी कह रही है कि आजकल किचन में भी कुकिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स भी हैं। पहले के टाइम पे तो इतनी लग्जरीज भी नहीं होती थी। पहले की जनरेशन लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश थी। और पहले इतने मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो आज भी हेल्दी लाइफ्स वो लीड कर रहे हैं। We have never heard of the word cousin in our childhood. We always looked at each other as brothers. सुरेश जी कह रहे हैं कि कभी उन्होंने cousin तो अपने वर्ड मतलब सुना ही नहीं था बचपन में। हर किसी को ब्रदर की तरह ही देखते थे। There was a common desire to bond together. In fact, people used to think of the entire village as their family. And today we find siblings fighting legal battles over property. सिस्टर शिवानी कह रही है कि पहले एक कॉमन डिजायर थी। कॉमन डिजायर हर किसी की डिजायर थी कि वो लोग एक साथ में रहे, उनका बॉन्ड हो साथ में। और जो लोग थे वो तो इवन इंटायर विलेज को ही फैमिली की तरह मानते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल जो सिबलिंग्स होते हैं वो ही लीगल मैटर्स प्रॉपर्टी के ऊपर फाइट करने लग जाते हैं। फ्रॉम अ स्टेज वेयर वी डिड नॉट हैव मच, वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर वी हैव ऑल कंफर्ट्स वी कैन थिंक ऑफ. We have earned it all through our efforts, but along our journey, we have also earned pain, anxiety, anger, and stress. This is why we have with us today the entire package, including wealth, difficult emotions, entangled karmic accounts, and an energy that is opposite of blessings. वो एक स्टेज थी जहाँ पे हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था पहले के जमाने में, और अब हम किस पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पे हम जो भी सोच सकते हैं ना, सारे कंफर्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन हमने किस तरह से इसको अर्न किया है, हमारे एफर्ट्स कैसे थे, ये जो जर्नी थी, हमारी जो जर्नी थी इसमें हमने क्या क्या पाया, पेन, एंजाइटी, एंगर, स्ट्रेस, सब कुछ। और अब तो हमारे पास पूरा इंटायर पैकेज है। वेल्थ भी है तो वेल्थ है, तो साथ साथ डिफिकल्ट इमोशंस है, इंटैंगल्ड कार्मिक अकाउंट्स है, और एनर्जी कैसी है, ऑपोजिट ऑफ ब्लेसिंग्स।
We never looked at things from this angle as our focus was always on earning money and reputation. सुरेश जी कह रहे कि इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं क्योंकि फोकस कहाँ था मनी और रेपुटेशन अर्न करने। सिस्टर शिवानी, the past is past, but are we ready to change now? सिस्टर शिवानी कह रही है कि पास्ट जो है वो तो पास्ट हो गई, पर क्या अब हम चेंज करने के लिए रेडी हैं? We need not give up the comforts we have earned for ourselves. We only have to bring about a change with it. सिस्टर शिवानी कह रही है कि हमें वो जो कंफर्ट्स है वो जो हमने अर्न करे हैं उसको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। बस क्या जरूरत है अपने अंदर में एक चेंज लाने की। Some people say that inventions like the mobile phone and internet are the cause of stress, but they are actually the cause of comfort. कुछ लोग कहते हैं कि जो इन्वेंशंस है मोबाइल फोन और इंटरनेट यही है सारे स्ट्रेस की जड़, पर एक्चुअल में क्या है कि इस वजह से कंफर्ट हमें मिलता है। आवर लाइव्स हैव बिकम सो मच इजियर एवर सिंस वी हैड दीज फैसिलिटीज। जब से हमें ये फैसिलिटीज मिली हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। A mobile phone does not cause any stress on its own. It becomes a problem when we get addicted to it or we misuse it. मोबाइल फोन कोई स्ट्रेस का कॉज नहीं है खुद में, वो प्रॉब्लम कब बन जाता है जब उससे कोई एडिक्ट हो जाता है या फिर कोई उसको मिसयूज करे। स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस साधन भी इस्तेमाल करो साथ में साधना भी करो। It means we must enjoy all means of comfort, but not abandon our inner world. स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? साधन भी इस्तेमाल करो। साधन क्या है? मीन्स ऑफ कंफर्ट। तो उसको इस्तेमाल भी करो साथ में साधना भी करो। मतलब अपने जो इनर वर्ल्ड को अबेंडन मत करो, अपने इनर वर्ल्ड को मत छोड़ो, उस पर भी ध्यान दो। We will, when we set out on the journey for change, we may be alone. जब हमने ये चेंज की जर्नी अपनी स्टार्ट करी तो हो सकता है हम अकेले हो सकते हैं। जो हमने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी जर्नी स्टार्ट करी, देयर विल बी challenges and simpler things may get a bit difficult and time consuming initially. challenges हो सकते हैं और जो सिंपल सिंपल चीजें लगती है ना वो डिफिकल्ट हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग लगती है शुरू शुरू में। बट इफ आवर अप्रोच इज राइट our spiritual energy will increase. पर अगर हमारा जो अप्रोच है वही राइट होगा ना तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज होगी। If our methods are not right, our soul power will go down. Methods अगर हमने अपनी जर्नी पे ध्यान नहीं दिया, राइट मेथड्स राइट वेज नहीं यूज किए तो सोल बैटरी क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। गॉड टीचेस अस सत्य की नाव हिलती है डोलती है लेकिन कभी डूबती नहीं। The boat of truth rocks but never sinks. सत्य की नाव हिलती डोलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं, कभी सिंक नहीं होती। So we must tread the path of truth, stand by our values and keep increasing our willpower. तो हमें क्या करना है? ये सत्य के रास्ते पे चलना है, अपने वैल्यूज के साथ खड़े रहना है और अपनी विल पावर को इंक्रीज करते रहना है। There are many corporate houses even today that follow ethics. सुरेश ये कह रहे हैं कि बहुत कॉर्पोरेट हाउसेस भी होते हैं आजकल भी जिनमें एथिक्स फॉलो किया जाता है। हमें स्टैंड बाय आवर वैल्यूज नॉट जस्ट इन फाइनेंशियल मैटर्स बट आल्सो व्हाइल डीलिंग विद पीपल। वी मस्ट इंटरैक्ट विद अदर्स विद द प्योरेस्ट एनर्जी। मिस्टर जीवानी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स में वैल्यूज नहीं यूज करने, मतलब जब किसी से भी डील करो तभी भी इन वैल्यूज को यूज करना। दूसरों से डील कैसे करना है? प्योरेस्ट एनर्जी के साथ। बट द बिलीफ इज दैट वी कैन नॉट वर्क डन विदाउट यूजिंग एंकर। तो सुरेश जी कह रहे हैं लेकिन बिलीव क्या है कि गुस्सा के बिना काम नहीं हो सकता। It is really a matter of personal choice. If we use those means, we should be ready to face the consequences too. It is up to us. तो मिस्टर शिवाजी कह रही है कि ये मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस है। अगर हम इन मीन्स को यूज करेंगे तो इसके जो consequences होते हैं उसको भी फेस करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। ये हमारे ऊपर है। What if it is too late before someone realizes his mistake? For instance, a person may keep achieving success by suppressing others, but he may not know until much later in life what repercussions it has had on him. क्या होगा अगर कोई बहुत लेट से रियलाइज करे अपनी गलती को? अगर किसी ने दूसरों को सप्रेस कर करके सक्सेस अचीव करी है तो उसको जो रेपरकशंस है बहुत लेट से लाइफ में मिलेंगे। Repercussions of our actions will not appear much later in life. We will get them every day.
सिस्टर शिवानी कह रहे हैं जो repercussions है ना वो बहुत लेट से लाइफ में नहीं मिलते, वो हर दिन ही मिलते हैं। वी शुड चेक फॉर द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस बियॉन्ड आवर फील्ड ऑफ वर्क एंड बैंक बैलेंस। तो हमें चेक करते करते पता चल जाता है जो एक्शंस होते हैं ना हमारी फील्ड ऑफ वर्क, जो कर्म भूमि बोला जाता है, जो हमने काम किए होते हैं, और बैंक बैलेंस, इसमें हमें चेक करते करते रिजल्ट समझ में आ जाता है। पर्सन हु सप्रेस अदर्स एट वर्क may feel restless when he goes back home। जो दूसरों को सप्रेस करता है वो रेस्टलेस फील कर सकता है जब वो घर जाए। He does not even have to wait till he goes home to realize this he is not at peace। सिस्टर शिवानी कह रही है उसे घर जाने की भी जरूरत नहीं है। जब वो दूसरों को सप्रेस करता है तो उस टाइम वो पीस में नहीं रहता है, खुद भी शांत नहीं रहता है। But he will not realize it himself. If he visits a doctor, he will tell him that it is the nature of his business that compels him to do all the bad stuff। The doctor will not give him any spiritual tools for self-empowerment. He will only write him a prescription। सुरेश जी कह रहे हैं कि वो खुद से रियलाइज तो नहीं कर पाएगा। अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को क्या बताएगा, अपने बिजनेस की नेचर बताएगा और फिर बोलेगा कि उसे ये सब करने की जरूरत होती है। और डॉक्टर उसको कोई स्पिरिचुअल टूल्स नहीं बताएंगे सेल्फ एम्पावरमेंट के, वो बस उसको एक प्रेस्क्रिप्शन लिख कर दे देंगे। अ साइकेट्रिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट गिव अ मेडिसिन दैट कैन make the mind peaceful। He can give a medical cure for a particular ailment such as depression, but this is no guarantee that the mind will become peaceful। There are so many people today who do not suffer from depression, but their mind is not at peace। Their mind is so restless that they cannot sit in solitude। That is why they switch on the TV or consume alcohol after returning from work। By choosing these means of escape, they temporarily withdraw from their noisy mind। They distract their mind because they know no other way to separate themselves from their own thoughts। कोई साइकेट्रिस्ट है चाहे मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो मेडिसिन नहीं दे सकता है कि जिससे माइंड पीसफुल हो जाए। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्योर ही दे सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, पर वो भी कोई गारंटी नहीं है कि उस मेडिसिन से वो ठीक ही हो जाएगा, उसका माइंड पीसफुल हो जाएगा। माइंड बहुत रेस्टलेस हो जाता है, इतना रेस्टलेस हो जाता है कि वो लोग अकेले नहीं बैठ पाते, वो लोग टीवी ऑन कर लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं काम से आने के बाद में। इन मीन्स ऑफ एस्केप से क्या होता है, टेम्पोररीली, सिर्फ टेम्पोररीली वो अपने नॉइसी माइंड से विथड्रॉ कर पाते हैं, अपने माइंड को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनको और कुछ पता ही नहीं है अपने ओन थॉट से सेपरेट होने के लिए। देयर माइंड इज नॉट एट पीस बिकॉज द एक्शंस दे परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द डे had actually stolen others' mental peace। If we cause unrest to others, no medicine, technology or addiction can help us। These are only temporary measures। उनका माइंड पीसफुल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो उनके एक्शंस है उस उसने ना दूसरों की पीस को चुरा दिया है। और ये जो अनरेस्ट होता है इसका कोई भी मेडिसिन, टेक्नोलॉजी के या एडिक्शन कुछ हेल्प नहीं कर सकता है। ये सिर्फ टेम्पररी मेजर्स होते हैं। विल इट नॉट हेल्प इफ दे मेडिटेट और सीक एडवाइस फ्रॉम गुरुज। ये हेल्पफुल नहीं होगा अगर वो मेडिटेशन करे, एडवाइस ले गुरुज से। दे माइट नॉट बी एबल टू मेडिटेट बिकॉज स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ गो टुगेदर। सिस्टर शिवानी के लिए वो मेडिटेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ एक साथ चाहिए। उस बात को तो अंडरलाइन करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ एक साथ चलती है, इस वजह से वो मेडिटेट भी नहीं कर पाएंगे, जो हमें अपने कर्म भी अच्छे रखने होंगे। If I start to practice meditation but my approach towards life remains the same and I continue to use anger in my interactions, I would create heavy energy and earn the same for myself all through the day। If I try to meditate the next morning, it might not work। One who shouts at others cannot meditate well the next day। It is not possible। That is why we have to take care of our spiritual well-being through meditation and practical well-being through good karma simultaneously। तो अगर हम वो सब नेगेटिव इमोशन यूज करते हैं ना तो मेडिटेशन भी हेल्प नहीं करता, क्योंकि हम वो कर ही नहीं पाते हैं। स्पिरिचुअल वेलबींग को हमें मेडिटेशन के साथ में और प्रैक्टिकल वेलबींग को गुड कर्मा के साथ में हमें चलाना होता है, साथ साथ में। मतलब मेडिटेशन और गुड कर्मा एक साथ जब करेंगे तब ये वर्क करेगा। Meditation is like filling up our bucket with the power of the Supreme। We learn to connect to Him and His powers flow in, filling up the bucket। Meditation में क्या करते हैं, हम अपनी जो bucket है उसको हम सुप्रीम की पावर से फिल अप करते हैं। हम लर्न करते हैं कि हम उनके साथ में कनेक्ट करें, उनकी पावर्स हमारे अंदर आ रही है, इस बकेट को फिल अप कर रहे हैं।
But if the bucket leaks all through the day, there are negative emotions and there are negative thoughts and actions, it will never get filled. पर ये जो हमारी बकेट है, जो परमात्मा की पावर से जो फिल हो रही है मेडिटेशन से, उसमें लीकेज कैसे होगा? नेगेटिव थॉट और एक्शंस की वजह से उसमें लीकेज होता रहेगा, और अगर लीकेज होते रहेगा तो फिर हमारी बकेट कभी फिल ही नहीं हो जाएगी, कभी फिल नहीं हो पाएगी. वी हैव टू प्लग द लीकेज एंड कीप अटेंशन ऑन आवरसेल्व्स थ्रू आउट द डे. तो हमें इस लीकेज को रोकना है, अपने आप के ऊपर अटेंशन देना है पूरे दिन भर. Doing our business ethically and honestly is an obvious component of plugging this leakage. इस लीकेज को प्लग करने का एक कंपोनेंट क्या है? अपने काम को बहुत एथिकली और ऑनेस्टली हमें करना है. We don't even need to discuss it, but because if we are not being fair at work, it means spirituality has not sunk into our lifestyles at all. और हमें इसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम अपने काम को अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमारी लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी नहीं है. इफ द डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी इज फार मोर देन द डिस्चार्ज, नो एनर्जी इज accumulated. So spirituality goes hand in hand with practical life. It will work for us only if we charge ourselves, not just during meditation but throughout the day. अगर जो एनर्जी लीक हो रही है वो फिलअप होने वाली एनर्जी से ज्यादा होगी, तब फिर कोई एनर्जी एक्यूमुलेट ही नहीं होगी. स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में हैंड टू हैंड हमारी स्पिरिचुअलिटी चलती है. तो हमें अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पे चार्ज नहीं करना है, पर पूरे दिन भर चार्ज करते रहना है. अच्छे कर्मा करके, गुड कर्मा के साथ में मेडिटेशन करने के साथ में ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं. Suresh Abhinay, true. When we go to a meditation camp, a temple, or a mosque, or when we meet an enlightened soul, we feel good. But for how long does that last? When we come back home, we are the same person again. Sister Shivani कह रही है कि जब हम कोई मेडिटेशन कैंप में जाते हैं, चाहे कोई टेम्पल में या मॉस्क में जाते हैं, तो या फिर हम किसी कोई एनलाइटेंड सोल से मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है. फिर कितने टाइम तक हमें ये अच्छा फील होता है? जब हम घर आते हैं तो हम फिर से वही सेम पर्सन बन जाते हैं. वी स्टे much longer in our practical field. If in our daily life we do not express the same vibrations that we experienced at a spiritual place, then the experience of peace and happiness will be transient. They will then feel good only as long as we are in that positive company or place. है कि हम जब तक वो एक्सपोजर में रहते हैं, उन पॉजिटिव फीलिंग्स के एक्सपोजर में जब तक हम रहते हैं, Yo juga lagi lagi aja mungkin sejauh ini kita komplit tapi dia itu lagi kita lagi छोटी छोटी चीजें मत बोल. ऐसा क्यों होता है कि जब तक हमें उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एक्सपोजर मिलता है तब तक ही हम वो पीस और हैप्पीनेस फील कर पाते हैं, उसके बाद में फिर से हम वो सेम पर्सन बन जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने प्रैक्टिकल फील्ड में, जो प्रैक्टिकली हम लाइफ में जैसे हैं,
वो भी हम ज्यादा टाइम तक रहते हैं। जो हमें कोई गुड प्लेस में, कोई अच्छी प्लेस में उस टाइप के जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए मिलते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को भी उस तरह से पॉजिटिव बना लेते हैं तब हमें वो और ज्यादा टाइम के लिए feel होंगे vibrations. The purpose of meditation is not to feel good and peaceful only while meditating. It is to accumulate spiritual power that can be used in our actions during the day, so that we remain peaceful throughout. मेडिटेशन का पर्पस क्या है? मेडिटेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि जब तक हम मेडिटेशन करें तब तक भी हमें गुड और पीसफुल महसूस हो, बल्कि मेडिटेशन का पर्पस ये होता है कि स्पिरिचुअल पावर एक्यूमुलेट करें, और इतनी पावर एक्यूमुलेट करें कि हम पूरे दिन भर पीसफुल रह सकें। It is like recharging our mobile phone in the morning so that it works all day. जैसे कह रहे हैं कि इस तरह से जैसे सुबह हम अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज कर लें कि पूरे दिन वो चल जाए। सिस्टर शिवानी, if we can talk over mobile phone only as long as it is connected with the charger, then it is of little use. We cannot stay next to the charger all day. अगर हम अपने मोबाइल फोन से तभी बात कर सकते हैं जब वो चार्जर से कनेक्टेड है, तो वो बहुत कम काम के लिए यूज हो पाएगा, क्योंकि हम पूरे दिन चार्जर के पास नहीं रह सकते। सिमिलरली वी कैन नॉट मेडिटेट ऑल द टाइम। इसी तरह से हम पूरे दिन मेडिटेशन भी नहीं कर सकते। ओनली दैट मेथड ऑफ मेडिटेशन इज करेक्ट विच एम्पावर्स अस फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। वो मेथड ऑफ मेडिटेशन करेक्ट होता है जो कि हमें पूरे दिन भर एम्पावर करे। इफ वी रिमेन हेल्दी ओनली एज लॉन्ग एज वी स्टे विथ द डॉक्टर, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट ट्रीटमेंट? द ट्रीटमेंट इज फाइन ओनली इफ इट मेक्स अस फिट इन जनरल। अगर हम हेल्दी सिर्फ उसी टाइम तक रहते हैं जब तक हम डॉक्टर के पास हैं, तो फिर ट्रीटमेंट का क्या ही फायदा है? ट्रीटमेंट कब सही होगा? जब हम ऐसे जनरली भी फिट रहें। Meditation and study of spiritual principles every morning empowers us. अगर हम मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं मॉर्निंग में, तो वो हमें एम्पावर करता है, वो हमें चार्ज कर देता है। They give us the tools to be used during the day in our every thought, word and action. उससे क्या होता है? मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से वो हमें टूल्स मिल जाते हैं जो कि हमें पूरे दिन भर यूज करने हैं अपने हर थॉट, वर्ड और एक्शन में, वेदर इन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। When we create pure thoughts and actions, it further increases our soul power. तो हम अपने दिन भर में जब वही प्योर थॉट्स और एक्शंस को क्रिएट करते रहेंगे तो हमारी सोल पावर और ज्यादा इंक्रीज होगी। And this daily practice keeps us stable and in charge of our emotions even in a crisis. और अगर हम डेली यही प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स की स्टडी करेंगे, चाहे कुछ अच्छा पढ़ेंगे और फिर वो जो हमने पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे ना दिन भर में, तो फिर हम स्टेबल रहेंगे और हम अपने इमोशंस के इंचार्ज भी रहेंगे कोई क्राइसिस के टाइम पे। Mantras for being love. When we use the weapon of anger to get our work done, our work gets done, but our energy gets depleted. Repeated depletion affects our happiness, health, and relationships. जब हम वेपन एंगर का, क्रिटिसिज्म का, इस तरह के नेगेटिव इमोशंस का यूज करते हैं अपने काम निकलवाने के लिए, तो हमारी जो एनर्जी होती है ना वो डिप्लीट हो जाती है। भले ही काम हो जाए लेकिन एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। और जो हमारी डिप्लीशन होती है वो अगर बार बार होती रहेगी रिपीटेडली, तो फिर हमारी हैप्पीनेस, हेल्थ और रिलेशनशिप अफेक्ट होगी, क्योंकि जो सीड है वो थॉट है हमारा। उसके बाद वो ट्री जो है, हैप्पीनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, वर्क, एवरी रोल वी प्ले इन आवर लाइफ,
वो फिर अफेक्ट होने लगेगा। एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस टुडे वी हैव अर्न दैट इन आवर इंटरेक्शंस। जो भी हम आज एक्सपीरियंस करते हैं वो हमने कैसे अर्न किया, अपने इंटरेक्शन से अर्न किया है। Today we have earned wealth, but we have also earned stress, anger and disease. तो हमने wealth तो earn किया, पर उसके साथ साथ में stress, anger और disease भी earn किया। We need to earn, but should also keep attention on our state of being. तो हमें earn तो करते रहना है, लेकिन उसके साथ साथ में अपने जो state of being है, अपनी soul के ऊपर, अपने state of soul के ऊपर भी attention रखना है। तो उसके लिए अटेंशन रखने के लिए हमें जो प्रोसेस होगा, जो मेथड्स हम यूज करेंगे, वेज यूज करेंगे, उनके ऊपर ध्यान रखना है कि वो पूरे पॉजिटिव हो, प्योर हो, ब्यूटीफुल थॉट्स हम क्रिएट करें, किसी को परेशान ना करें। While at work, if we are compassionate towards working with us, if we cooperate with everyone, then we are not only earning money but also earning blessings and good wishes. काम के टाइम पर अगर हम दूसरों के साथ में कंपैशनेट रहते हैं, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हो, हम उनके साथ में कोऑपरेट करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं अर्न करते, बल्कि हम ब्लेसिंग्स और गुड विशेस भी अर्न करते हैं। टुडे वी एक्सपीरियंस लेस रेस्टलेसनेस इन द माइंड बिकॉज वी हैव caused restlessness to people in our interaction. लोग रेस्टलेस क्यों फील करते हैं माइंड में? क्योंकि उन्होंने और लोगों को अपने इंटरेक्शंस में रेस्टलेस फील कराया है, इसीलिए। तो ये बुक कंप्लीट हो गई है। बीके शिवानी जो इसकी ऑथर है, मतलब बीके शिवानी और सुरेश ओबरॉय जी, इन दोनों की कॉन्वर्सेशन जो आती थी अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें, तो ये बीके शिवानी के बारे में, स्पिरिचुअल गाइड एंड मेंटर, स्पीकर एंड राइटर। 1996 से ये प्रैक्टिशनर और टीचर है राज योगा मेडिटेशन की। और ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में ये टीच भी करती है। इंटेंट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस थ्रू स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस, शी हैज बीन एम्पावरिंग मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस देयर इनेट पीस, हैप्पीनेस एंड लव। तो ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है उसको स्पिरिचुअल एजुकेशन और मेडिटेशन प्रैक्टिस से ट्रांसफॉर्म करने के बारे में बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज देती है, और ये बहुत लोगों को एम्पावर कर चुकी है अभी तक, मिलियंस को, और भी लोगों को करती है। ये जो शो आया था ना 2007 में, फर्स्ट टाइम आया था और वाइडली पॉपुलर था ये टेलीविजन शो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी को एक रेयर डिस्टिंक्शन मिला था, इसमें 2000 एपिसोड्स कंप्लीट हुए थे। ओवर अ डेकेड द शो हैज एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे बहुत लोग एम्पावर हुए हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं, यूएसए, कनाडा, यूके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। Viewers have overcome mental stress, depression, addiction, low self-esteem, and unhappy relationships by taking personal responsibility of their emotions. कैसे ये सब ओवरकम किया जा सकता है? जब हम अपने इमोशंस की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जैसे हमने सिखाया भी ना, मतलब इन्होंने सिखाया भी ना, कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, ब्लेम गेम को नहीं यूज करना है। In March 2019, बीके शिवानी was awarded the prestigious नारी शक्ति पुरस्कार। इनको इससे भी सम्मानित किया गया था, highest civilian honor for women in India, for her role in transforming human behavior. Since 2017, she has been appointed as a Goodwill Ambassador by the World Psychiatrist Association. वर्ल्ड साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन के गुडविल एम्बेसडर भी हैं 2017 से। For her excellence in empowering spiritual consciousness, she was honored with the Women of the Decade Achievers Award. इनको Women of the Decade Achievers Award भी मिला था SHM Ladies League in 2014. Vicky Shivani's TV show Happiness Unlimited was adapted into a book in 2014 owing to its success. The book in India qualified into the Amazon Best Read list and went on to be the #1 bestseller in the religious and spiritual section. अभी हम ये बुक भी स्टार्ट करेंगे।
अभी तो ये जो बुक हमने कंप्लीट करी बीइंग लव, इसके बाद हम द पावर ऑफ नाउ बाय कर्ट टोले वो स्टार्ट करेंगे. Having traveled to over 35 countries across the globe, across USA, Canada, UK, Europe, Australia, and New Zealand, Africa, Southeast Asia, and Middle East. She has delivered over 3,500 talks overseas in India. She shares simple, practical wisdom through diverse platforms like public platforms, television shows, discussion panels, interactive workshops, retreat seminars, corporate events, social and community development initiatives, radio shows, and social media outlets. At Silicon Valley, USA, she has addressed corporate giants such as Google, Microsoft, Cisco, Amazon, and Intel. She has also spoken at business houses like Reliance Jio, Maruti Suzuki India, Indian Oil Corporation, Godrej Industries Limited, Sony Entertainment Television, Airtel Mobile Services, GE Energy, Asian Paints, Jet Airways, Singapore Airlines, and Times of India, to name a few. Apart from the PIPO, FLO, and NEO chapters, Indian Armed Forces. She also speaks at the Rotary International and Lions Club International. She has been invited by Pan Indian premier schools, colleges, management institutes, and leadership institutes like IIM, IIT, AIM, and so on. इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे. ये बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड है, आप इनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं. और ब्रह्म कुमारी भी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एनजीओ है, और ये 5 कॉन्टिनेंट्स में है. इसको भी जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है. और ब्रह्म कुमारी में जो स्पिरिचुअल विजडम सिखाई जाती है उसे तो बहुत अच्छी तरह से इम्बाइब करके सिस्टर शिवानी हमें समझाती है, और बहुत अच्छे से हमें उनका समझ में भी आता है. इसके बहुत सारे विंग्स भी है ब्रह्म कुमारी. इसके एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, आर्ट एंड कल्चर, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एजुकेशन, जर्नलिस्ट, मीडिया, मेडिकल, पॉलिटिशियन, रिलीजियस, रूरल डेवलपमेंट, साइंटिस्ट एंड engineer, security services, shipping, aviation, tourism, social service, park, sports, transport and travel, women's wing, youth wing. और कोर्सेज क्या क्या मिलते हैं, ये सारे कोर्सेज भी मिलते हैं. राज्यों का मेडिटेशन कोर्स, ये राज्यों का मेडिटेशन कोर्स में हमें वो मेडिटेशन सिखाया जाता है जिसके बारे में वीके शिवानी, सिस्टर शिवानी बात करती है. इसमें 8 स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में बात की जाती है. वो क्या क्या पावर्स है? द पावर टू विथड्रॉ, the power to pack up, the power to accommodate, the power to discriminate, the power of judgment, the power to face, the power to cooperate, the power to tolerate. स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल हमें सिखाई जाती है. सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सिखाया जाता है. गॉड को, सुप्रीम सोल को कैसे हम जाने, रिलेशनशिप विद गॉड, कैसे गॉड के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें. पहले हम खुद को जानेंगे, भगवान को जानेंगे, मतलब जो भी गॉड है हमारे उनको जानेंगे, फिर उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे. मेडिटेशन करके रोज उनसे कनेक्ट होंगे और उनसे पावर्स लेंगे, अपनी बकेट को पूरा फिलअप करेंगे और उसको लीकेज से, कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं आने देना है, लीकेज से रोकना है, किस तरह से खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे अच्छे से चलना है. ये सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिलती है. लॉ ऑफ कर्मा कैसे ऑपरेट करते हैं. अवेकन टू न्यू वे ऑफ लिविंग. हम सबको यही करना है, हम सबको अवेकन ही होना है, न्यू वे ऑफ लिविंग. क्योंकि हमने अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स के बारे में जैसे इस बुक में एकदम डिटेल में पढ़ा ना, तो वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम को हमें छोड़ना है. और जो न्यू न्यू चीजें हमें पता चली ना, सोल की ओरिजिनल क्वालिटीज को कैसे यूज करना है, तो अभी हमारे लिए हमारी लाइफ में ये न्यू वे ऑफ लिविंग है. और इसको हमें अपनाना है, अपनी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाना है, गुड कर्मास रखने हैं, तो हमारी डेस्टिनी भी ब्यूटीफुल ही होगी. So thank you so much. We are so grateful to have completed this beautiful book, Being Love, with you all. हमने ये वाली बुक अपने जो सेशंस हम जिनमें कंडक्ट करते थे ना ऑनलाइन, उसमें तो कंप्लीट कर ली. यूट्यूब में सारे वीडियोस नहीं है क्योंकि सेशंस हमने बीच में ही लेना स्टार्ट करे थे. लेकिन जितने सेशंस बाकी है ना उनकी प्लेलिस्ट जल्दी ही रेडी हो जाएगी, तो आप उस समय से भी गो थ्रू कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. ओम शांति.
अनिका दी, अनिका दी, हाँ जी, हाँ जी। ये सुना? मेरे ना घर में कोई, हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। सब सुन लिया आपने? हाँ सब सुना। फिर अभी जो मेरे ना घर लास्ट में में गेस्ट आ बोला, गए। हाँ अभी लास्ट में जो बोला वो सब आपने सुना? हाँ बहुत अच्छा बोला आपने, सुना ये हम मैंने कि बोलने वही ना वाले नहीं, कि ये हम बोलने वाले नहीं थे, पता नहीं फिर पेज जब वो स्क्रॉल करते गए तो फिर देखे, तो फिर हम सोचे थोड़ा सा बोलते हैं विकी शिवानी के बारे में, पर मेरी इतनी फेवरेट है ना ये कि ना मेरा और मन कर रहा था, हाँ मतलब वो इन्हीं का वीडियोस हाँ देखने नहीं बहुत के अच्छा। लिए। फिर हम सोचे ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं इसको क्योंकि बीके वाला नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा करते करते एक्सप्लेन कर दिए, ठीक लगा ना? हाँ बहुत अच्छे से आपने किया एक्सप्लेन। ये अब बाबा आपसे कंप्लीट। बहुत अच्छा ही करवाते हैं सब। मेरा गला लेकिन बैठा हुआ है। हाँ वो पता नहीं चला पता वैसे। नहीं चल रहा है। अच्छा है। नहीं रीडिंग में तो नहीं पता चला। मेरे को मेरे ना घर में भी एक्चुअली गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ अभी हम आपका हम्म, मैसेज देखे, आई वोंट बी एबल टू टॉक। हाँ अब ये हाँ कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हो हाँ गया। ये कंबाइन अगर हो जाएगा ना रिकॉर्डिंग बंद कर दी ना। हाँ रिकॉर्डिंग पॉज करके ही हम आपको बोलेंगे। हाँ हाँ। अच्छा अभी आप कुछ मैं एक बोल काम पाएंगे करती क्या? हूँ किसको। अभी आपके गेस्ट आए हुए हैं ना सामने। लेके आए। हाँ तो मैं वैसे नहीं क्या कुछ उसके लिए बोलना है, रिकॉर्डिंग में बोलना है। नहीं नहीं, वो टेक अवे अगर आप देना चाहें तो, क्योंकि अभी टाइम है तो हम रिज्यूम अरे कर दें। नहीं यार मैंने आज ढंग से सुना ही नहीं, पता है मैं किचन में थी। अच्छा अब अच्छा। दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा मुझे चैप्टर। तो कोई बात नहीं, फ्राइडे से आप एकदम, अरे यार हाँ। हाँ फ्राइडे को आपका ही है, फर्स्ट सेशन आपको ही देना है द पावर ऑफ नाउ का। अरे बाप रे। हाँ अच्छा। देखते रहते हैं, अपनी शादी का कुछ आ जाए, कोई बात नहीं, आप अभी अपना काम कर लीजिए, एंड कर देते हैं, ठीक है? गुड नाइट, बाय बाय एंड शांति। गुड नाइट, थैंक यू। मैं आपको करती हूँ वापस घर आके कॉल। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। टेक केयर। ठीक है, करती हूँ मैं हाफ एन आवर तक, हाफ एन आवर 45 मिनट तक।